pond. The soil of Assam has many, many ponds. Are you aware of that? Raise your hands if you are. The soil of Assam state has many small ponds. Raise your hands if you have seen them. Ponds, पता है pond को क्या बोलते हैं? पुकुरी तालाब बोलते हैं, तालाब भी नहीं बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे मच्छियाँ होते हैं. When I first visited Assam in 2017 to conduct personality development workshop in this hall itself, I was staying at Ajmal guest house. Chef came to me asking, "Sir, मगरमच्छ खाएगा?" मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं खाएगा, बहुत अच्छा होता है, मगरमच्छ खाएगा, हम लोग मगरमच्छ नहीं खाते हैं. फिर मैंने पूछा, मौलाना खाते हैं? बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना खाता है. तो फिर मैंने कहा मैं भी खाऊंगा. फिर खसरू सर से मैंने पूछा कि सर ये मगरमच्छ बोल रहा क्या है? तो उन्होंने कहा ये फिश है. मैंने कहा माय गुडनेस, I was under the impression that he was asking me whether he was preparing crocodiles for me. फिर बाद में पता चला कि मगूर मच्छी का एक नाम है और मांस आप लोग मच्छी को बोलते हैं, हम लोग मांस गोश्त को बोलते हैं. तो मगरमच्छ नहीं खाया. तो बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं आसाम में. तो पॉन्ड्स में क्या शार्क्स होते हैं या छोटे छोटे मछलियां होते हैं? तो आप लोग वो छोटे छोटे मछलियां हैं. अभी आप लोग पॉन्ड से बाहर निकले हैं. यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ स्मॉल पॉन्ड्स. नीट क्लियर किए, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर ग्रेट अचीवर्स. नो, नॉट एट ऑल. Because in the past many students have already done that. You have not done anything new. Have you done anything new that nobody has done it ever in their lives? No. Before you have cleared NEET, millions of students have already proven that. Do something that millions of students are striving hard to achieve that, but they are unable to reach that. वो करके दिखाना है आपने. वो काम ना करें या फिर वो कर खुश ना रहें जो already millions of students have done in the past. Of course, 96% of students failed to crack NEET this year. Only 4%. Out of 25 lakh aspirants, only 4 lakh students cleared NEET exam. And that is a big accomplishment. Undoubtedly, it's a very big accomplishment, but still I would say, you are a small fish in a small pond. You have to go a long way. You have to study for about 5 years from now to be called a doctor, and this world has no respect for the doctors, those who are just done with MBBS. You have to go for masters as well. And even the fresh students who have done masters, even they don't get respect. They have to prove their mettle. And further they have to practice a lot. तो ये नीट आपने क्लियर किया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. लेकिन इस बात को लेकर आप लोग खुश ना रहें कि you have achieved the world. No, you are a small fish of a small pond. And here to give a very small talk, and I begin my talk giving you a task. I would say the 4 initial letters of a 4-word phrase, BTBD. B, T, T as in Tom, and B, D. अगर आपने एक फ्रेज बनाना है इससे तो क्या बनाओगे? Giving you a task now. B, T, B, D. इससे आपने एक सेंटेंस बनाना है. एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है तो क्या बनाओगे आप? Shall I help you out? लास्ट वाला बोलूं कि पहला वाला बोलूं? चलिए, डॉक्टर. वेरी गुड. बी द बेस्ट डॉक्टर. बी द बेस्ट डॉक्टर. अब यह सवाल होता है कि बेस्ट डॉक्टर आप किसको बोलते हो? जो मास्टर्स अमेरिका में किया है वो बेस्ट डॉक्टर है? Not at all. You might have, rather, you might go into the very profundity of all subjects.
But if you do not have compassion for the people, for the patients, you can never be called a best doctor. Compassion पता है आप लोग को? एक होता है पैशन. पैशन की वजह से आप लोग नीट क्लियर किए. नीट क्लियर करना आसान नहीं है. मैंने पहले the very beginning I told you that about 25 lakh individuals appeared for exam this year and hardly 1 lakh individuals, I mean 4% students could clear NEET, and those who had passion, they cleared that. But to be the best doctor, you just do not need passion, you also need compassion. अब compassion किसे बोलते हैं? उर्दू हिंदी में compassion हमदर्द को बोलते हैं. आपने सुना होगा एक वर्ड हम सफर, कभी सुना आपने? हम सफर किसे कहते हैं? जो आपके साथ सफर करता है वो हम सफर है. शायरी जो करते हैं या सुनते हैं उन्हें मालूम है हम सफर, हम ख्याल, हम दम. और उसमें एक वर्ड है हमदर्द. हमदर्द यानी दूसरों के दर्द को फील करना. If a doctor does not feel the pain, then those doctors cannot have compassion for them. Compassion का होना बहुत जरूरी है. With passion, you can go into the depth of the subjects and acquire knowledge. With mere knowledge, you cannot conquer the hearts of the people. My dad was pharmacist. He was not a doctor. But doctors of the government hospital respected my dad a lot, because my dad as a pharmacist had immense compassion for patients, and he used to run a clinic at home as well, and he taught that art to my mom as well. And my mom is earning about 40 to 50,000 sitting at home now. She's just 10 past woman. घर में बैठकर वो 50,000 रुपए बनाती है. आज तक एक भी केस खिलाफ नहीं आया मदर के, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन के साथ में रूल्स को फॉलो करते हुए. एक दफा एक स्नेक बाइट केस आया था हमारे घर. इन्फेक्शन हुआ था. ये हड्डी जो होती है, क्या नाम होती है इसकी हड्डी का? रेडियस अल्ना फेमर तक पड़ा था. इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस. ये दिख रही थी अपेरेंटली. आई कुड सी दैट. तो वो घर आता था ट्रीटमेंट के लिए. तो ही केम फॉर 10 days, देन ही डिसअपियर्ड. वो आना बंद कर दिया. देन आई रिमेंबर माई डैड हैविंग अ टॉक विथ माई मॉम, इंक्वायरिंग अबाउट दैट पेशेंट, दैट व्हाई ही इज नॉट टर्निंग अप. वो बंदा क्यों नहीं आ रहा है? 10 दिन तो रोज आया इलाज कराने, अब क्यों नहीं आ रहा है? फिर वो सोचे कि शायद उस बंदे के पास में पैसे नहीं होंगे या फिर कहीं दूसरी जगह गया होगा. 10 किलोमीटर्स मेरे डैड ट्रैवल किए हैं बाइक पर. उस गांव जाकर इंक्वायरी किए और उससे पूछे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो. तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इलाज के, ट्रीटमेंट के, इसीलिए मैं 10 दिन इलाज करवाया. 2-3 साल कराकर थक गया. सिटीज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में गया, कुछ नहीं हुआ इसका. अब बचे जो पैसे थे वो आपके पास 10 days करवाया मैंने, और उसके बाद मेरे पैसे हो गए तो फिर मैंने आना रोक दिया. देन माई डैड कन्विंस्ड हिम. उन्होंने कहा कि इट टेक्स अबाउट 3 months फॉर द कंप्लीट ट्रीटमेंट. यू कम टू माई हाउस एवरी डे, आई डोंट चार्ज अ पेनी. जब आपका हाथ सही हो जाएगा और उस हाथ से आप कमाने लगोगे, उसके बाद मुझे पैसे देना. फिर घर बुलाकर घर के पास, घर के सामने एक बड़ा पत्थर रखकर कहा कि आप इसी हाथ से 3 महीने के बाद ये पत्थर उठाओगे, और 3 महीने विद कंसिस्टेंसी ट्रीटमेंट मेरे डैडी ने किया. 3 महीने के बाद वो हड्डी जो नजर आ रही थी, हड्डी पर गोश्त आ गया था. उसके बाद वो अपना काम करने लगा, कुछ पैसे भी लाकर दिया. ये पैशन की वजह से किए डैडी या कंपैशन की वजह से? It's a combination of passion and compassion. And I remember my dad was paralyzed. And one night he was crying. Then I asked, my mom and I, we both asked, क्यों रो रहे हैं आप? हम अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स जाएंगे, आप परेशान मत होइए डैडी. We give our 100% for your treatment. आप लोग को याद रखना चाहिए ये बात. मेरे डैडी ने कहा कि मेरे डिजीज को लेकर मैं परेशान नहीं हूं. इन हाथों से
मैंने कई सारे पेशेंट्स को ग्लूकोज दिए हैं, इंजेक्शंस दिए हैं, और स्पेशली वुंड्स जो होते हैं ना, फोड़े वगैरह, उसके मशहूर थे मेरे डैडी। डॉक्टर नहीं थे, फार्मासिस्ट थे, लेकिन मशहूर थे। डॉक्टर्स भेजा करते थे कि हम नहीं कर सकते, फलानी जगह क्लिनिक है वहां जाइए, ये बहुत पेशेंट्स के साथ करते हैं। अब मैं ये हाथ से बंदों का इलाज नहीं कर सकता, इस बात को लेकर मैं परेशान हूं, इसलिए रो रहा हूं। वो बीमार है करके नहीं रो रहे हैं, आई कैन नॉट प्रैक्टिस इसलिए रो रहे हैं। ये पैशन होना, फिर कंपैशन होना। तो आप लोग के पास पैशन और कंपैशन है तो आप बी द बेस्ट डॉक्टर, जो मैंने कहा वो आप बन सकते हैं। अभी तो फ्रेश 1 साल हुआ है आपका, यू जस्ट डन विद द फर्स्ट ईयर, लॉन्ग वे टू गो। इसके बाद मास्टर्स आपने करना है, यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्टर बिगिंस विद द लेटर डी, यस और नो? लेकिन डी से कुछ वर्ड्स हैं जो ये सफर में 5 साल, 8 साल, 10 साल जो भी आप पढ़ोगे। डॉक्टर अरुण साहब ने तो कहा कि द एज ऑफ 40 ही achieved the certificate. It means until then he was studying. तो डॉक्टर तो बनोगे जरूर आप, लेकिन डिसिप्लिन आप में नहीं है। याद रखें, एक डॉक्टर के पास डिसिप्लिन नहीं है तो वो डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा और डिप्रेशन में जाएगा। मैंने ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, इनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था तो वो डिविएट हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, डिप्रेशन में गए हैं और लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली है। सब डी से शुरू हो रहा है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। एक एमबीबीएस की लड़की आप ही की तरह मेरे पास पढ़ने आई थी। वो आकर कह रही थी कि सर, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, एक लड़की इस साल हमारे कॉलेज ज्वाइन हुई है, शी वाज स्टडीइंग 4th ईयर देन। वो मुझसे कह रही थी, मुझसे क्या पूरे क्लास को कह रही थी कि एक लड़की है जिसके मिनिमम 6 बॉयफ्रेंड्स हैं। अच्छा, मिनिमम 6 बॉयफ्रेंड्स कहाँ के? नीट और कॉलेज के नहीं है, ताजा ताजा आकर इस कॉलेज के, जो कॉलेज में पढ़ने आई है, वहां 6 बॉयफ्रेंड्स बनाई है। तो वो करियर बना पाएगी, एक अच्छी माँ बनेगी? बताइए मुझे, माँ बन पाएगी, इंस्पिरेशन बन पाएगी? सवाल ही नहीं है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इसी उम्र में होते हैं, याद रखना। ये जो उम्र से गुजर रहे हो आप, ये डिस्ट्रैक्शन के ओपन चांसेस हैं, उससे बचना है आपने। टोटल फोकस रखें अपने गोल पर। आपका गोल क्या है कि आपने एमबीबीएस क्लियर करना है, मास्टर्स करना है, और वो जो सफर है आपका, जर्नी है, उस जर्नी में कितने डिस्ट्रैक्शंस होंगे। उसमें सोशल मीडिया एक है और ये लव अफेयर है, बहुत से हैं। आई डोंट हैव टाइम, इफ आई एवर गेट टाइम देन आई वुड गिव अ बिग लेक्चर ऑन दैट, बट ये 2 ऐसे हैं, जो मोबाइल एडिक्शन और ये लव अफेयर, ये दोनों से अगर आप बचते हैं तो आप बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। मैंने एक लड़की से पूछा कि बॉयफ्रेंड और मोबाइल दोनों में एक की कुर्बानी देना है तो किसकी दोगी? एक को छोड़ना है तो किसको छोड़ोगे? अच्छा, जब बॉयफ्रेंड को चूज किया था, पिक किया था, जब कौन से डायलॉग्स थे? आपके बिना जी नहीं सकती, यू आर द वर्ल्ड टू मी, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यही तो डायलॉग्स चल रहे थे ना। लेकिन इस जमाने के लड़के भी लड़कियां भी वो बोलेंगे कि मैं तो मोबाइल को ही चूज करूंगी, क्योंकि बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं तो मोबाइल, सोशल मीडिया पे हंड्रेड्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स मिलेंगे। ये बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं तो सोशल मीडिया पे हंड्रेड्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स मिलेंगे। तो ये चल रहा है। पहले जमाने में इश्क होता तो एक से ही होता था, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आज का वो जमाना नहीं है। सर पर जितने बाल है उतने बॉयफ्रेंड्स चाहिए, उतने गर्लफ्रेंड्स चाहिए। सही बता रहा हूं, तजुर्बा है। मैंने 3 लाख बंदों को पढ़ाया है, 24 स्टेट्स में मेरे वर्कशॉप्स हुए हैं इंडिया में।
आई नो द इन्स एंड आउट्स। ये जो एज से आप गुजर रहे हो, इस एज से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस बंदे में डिसिप्लिन है वही बंदे अपने गोल तक जा सकते हैं और एक पैशनेट और कंपैशनेट डॉक्टर बन सकते हैं। पैशनेट कंपैशनेट डॉक्टर बनने के लिए किन डिस्ट्रैक्शन से आपने बचना है वो लिख लें, क्या क्या चीजें हैं। और मैं हर जगह हमेशा आज भी कहूंगा, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर ए टॉक टुमारो, कल भी मैं ये बात रखूंगा कि जो आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, यू मेक फ्रेंड्स, और वो जो फ्रेंड्स है ना, दे कैन मेक यू एंड एट द सेम टाइम दे कैन ब्रेक यू। वो आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स अब हैं, जो फर्स्ट ईयर में आपने दोस्ती कर रखी है ना जिन भी बच्चों से, या तो आपको आबाद करेंगे या फिर बर्बाद करके छोड़ेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि किससे आपने दोस्ती करना है। इस उम्र में ना मेरी जैसी बातें जो मैं कर रहा हूं वो आपके दिल दिमाग में नहीं उतरती हैं, लेकिन आफ्टर 10 years आप लोग ये बात को याद करेंगे कि काश सर की बातें हम सुन लेते और अमल करते तो आज हम बहुत पोटेंशियल डॉक्टर बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समंदर में पैर रखे हैं, छोटे पॉन्ड से आप लोग समंदर में पैर रखे हैं और मंजिल दूर है, समंदर आपने किनारा पार करना है और डेप्थ पता है समंदर का कैसा होता है, बीच में बहुत से शार्क्स आते हैं, वो सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो शार्क्स से लड़ते हुए आपने किनारे पे जाना है। फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स। ये दोस्त कोई काम आने वाले नहीं है आपकी लाइफ में। यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, खाजी सर को मैं जानता हूँ बॉम्बे के। प्यारे बच्चों, यहाँ जो 10-20 साल जो आपकी उम्र है, 20 साल में कितने दिन होती है? डॉक्टर्स को मैथ आती है ये भूल गए? हाँ जी, एक साल में कितने दिन? 365। डॉक्टर्स के भी इतने, तो 10 साल के कितने और 20 साल के कितने? 7000 तो होंगे ना। क्या आपने 7000 दिन जिए हैं इस दुनिया में? हाँ जी, जिए हैं ना। उससे ज्यादा प्रोग्राम्स डॉक्टर खाजी साहब अटेंड किए हैं एज ए चीफ गेस्ट। वैसी पर्सनैलिटी है ये। समझ आ रही है बात आप लोग को? इनसे इंडिविजुअली जाकर पूछें कि फ्रेंड्स पर एक लेक्चर दीजिए तो ये जरूर बोलेंगे कि फ्रेंड लाइफ में होना है, लेकिन सब कुछ फ्रेंड्स नहीं होते हैं। एक एज पर आप जाने के बाद आप समझोगे कि आपके असल कौन है। आपके असल आपके पेरेंट्स हैं, आपके सगे भाई और सगे बहन हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका सगा भाई सगी बहन कुछ कर नहीं पाई और आप डॉक्टर बन गए और वो लोग परेशानी से उनकी जिंदगी गुजर रही है, तो आप एक कामयाब डॉक्टर नहीं है। उसकी फैमिली भी चलाना आपने, उनके बच्चों को भी पढ़ाना आपने, तब आप एक अच्छे इंडिविजुअल है। अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंसान नहीं बन रहे। अच्छे इंसान भी बनना है। और सबसे पहले इस दुनिया में कोई है आपके, तो वो आपके वालिदैन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपके भाई बहन हैं, बाद में आते हैं फ्रेंड्स। डोंट गिव देम ए चांस टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, योर करियर। आपका करियर आपके हाथ में है। आपका करियर अपने दोस्तों के हाथ में कभी ना दें। ऐसा अगर आप करते हो तो आप अपना करियर तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। I will give a talk inshallah tomorrow as well, because we have very eminent personality all the way from Mumbai और बहुत ही experienced है, and he is a very proficient speaker as well. He attended one of the convocations of my personality development workshop as a chief guest in Delhi at India Islamic Cultural Center, and he delivered amazing talk over there way back in 2019, and today we are very fortunate. I regard myself very fortunate for getting this opportunity to listen to such wonderful doctor, a great achiever, mashallah. A big round of applause for him as well for turning up here, and I wish you all the very best of luck. आप लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चूज किया है. You are chosen individuals. Now it is your job
to achieve big in your life, help your parents, help your brothers and sisters, help your neighbors, help your relatives. उसके बाद फिर friends को कभी कॉफी पर ले जाना. Thank you so very much.